Good evening students and welcome to my channel. So in the last 3 videos we have discussed about the healing of the womb. So today we will discuss about something about the tracheostomy. So as you know, this tracheostomy is an artificial opening in the anterior wall of the trachea. So there are various indications हमें tracheostomy क्यों करनी है, किस लिए करनी है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है. So everything we will discuss and when to take emergency measures. कभी रुकावट हो जाए ट्रेक्योस्टमी के अंदर, all of a sudden patient is cyanosed, breathe नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में जो भी डॉक्टर इमरजेंसी ड्यूटी पर है उसको इमीडिएटली क्या करना है. दूसरा, जब ट्रेक्योस्टमी आपने कर दिया, इंडिकेशंस आपको पता थी, अब ट्रेक्योस्टमी कब निकालनी है, कैसे निकालनी है, उसकी देखभाल कैसे करनी है, तो यही सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे. But the mode of discussion would be through the questions. So I will ask 10 questions about the tracheostomy and these 10 questions will cover whole of the topic of the tracheostomy. So you must first read your tracheostomy, answer these questions. When you find that there is some difficulty, you can ask in the, you can say the message box, or you have to wait a day or two for the answers to be discussed. तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ट्रेक्योस्टमी. देयर इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द अपर एयरवे. सो वेन एवर वी बाईपास एंड वी डू द ट्रेक्योस्टमी हेयर, नॉर्मली आर एयरवे जो हम सांस लेते हैं नाक से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लैरिंग्स एंड देन इनटू द ट्रेकिया एंड देन एयर गोज टू द lungs. But when we do the tracheostomy, जब हमने tracheostomy artificial airway हमने यहाँ बना दिया, that means this part of the airway is bypassed. अब हवा यहाँ से ना जाके डायरेक्ट यहाँ से जा रही है, तो इस पार्ट के वो 3 कौन से फंक्शन हैं जो बाईपास हो गए ट्रेक्योस्टमी की वजह से. यू हैव टू आंसर दोज. डिफाइन ट्रेक्योस्टमी डेफिनेशन हालांकि मैंने अभी बता ही दी है, सो यू हैव टू अगेन राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द tracheostomy. So tracheostomy is useful in nasopharyngeal or tracheal obstruction. So this is one of the, you can say, the indications of the tracheostomy, that whenever there is obstruction in the airway, so you have to define at what level of airway obstruction the tracheostomy is beneficial and at what level of airway obstruction tracheostomy is not beneficial. तो आपने यही बताना है कि किस में यूजफुल है, नेजोफेरेंजियल और ट्रेकियल ऑब्स्ट्रक्शन एंड वाई. ठीक. देन द क्वेश्चन नंबर 3 इज ट्रेक्योस्टमी बाईपासेस विच फंक्शंस ऑफ द अपर एयरवे. पहला क्वेश्चन था नेम 3 फंक्शंस. 3 फंक्शन कौन से हैं जो ट्रेक्योस्टमी की वजह से बाईपास हो सकते हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन. दिस इज द अपर एयरवे. इसका अपना एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, एनाटॉमिकल फंक्शन है जिसकी वजह से ये अपर एयरवे की इम्पोर्टेंस है. जब हमने ये बाईपास कर दिया तो वो कौन से 3 फंक्शंस हैं जो ट्रेक्योस्टमी की वजह से बाईपास हो गए और हमारे को आर्टिफिशियल रूप से वो तीनों फंक्शंस क्रिएट करने हैं ट्रेक्योस्टमी पेशेंट के अंदर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आर व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्रेक्योस्टमी. So whenever we are performing surgical procedures either by accident or because of some short neck or many other things are there because of which the complications do happen, though the rate of complications is very low. तो कुछ न कुछ complications जो books में लिखे गए हैं वो कहीं ना कहीं किसी वजह से हो जाते हैं. So these are accidental complications, these are because of lack of you can say the knowledge about the anatomy, lack of, or you can say the abnormal anatomy is present, or there is no proper help and you are doing alone. So there are many things because of which these complications do happen. So when these complications happen, तो उन complication जब हो जाएं तो उसको आपने कैसे डील करना है, किस complication में क्या precaution आपने लेने हैं कि वो complication को हम avoid कर सकें. The next question is how you will take care of tracheostomy patient.
ट्रिकोस्टमी की आपको इंडिकेशंस पता लगी, आपने ट्रिकोस्टमी कर दी, पेशेंट की जान आपने बचा ली। लेकिन अभी हमने बताया कि 3 फंक्शंस बाईपास हो गए। एक तो हमें जो है वो तीनों फंक्शंस क्रिएट करने हैं, सो दैट द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द एब्सेंस ऑफ दीज फंक्शन, जो 3 फंक्शन जो अपर एयरवे के हैं, जो अगर वो नहीं होंगे तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, एंड देन 3 फंक्शंस वो हो गए। और दूसरा, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ट्रिकोस्टमी पेशेंट के अंदर जो हमारे को अवॉइड करनी है, और किस तरह से उस पेशेंट का हमने ख्याल रखना है, ट्रिकोस्टमी पेशेंट का। तो ये आपने बताना है कि ट्रिकोस्टमी पेशेंट आईसीयू के अंदर है, बोल नहीं सकता, यहाँ पर वुंड है, सिक्रीशंस लग रहे हैं। सो देयर आर, आई हैव गिवन इनडायरेक्ट आंसर टू मैनी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द tracheostomy. So how you will take care? In GCS, that means Glasgow Coma scoring, the verbal score of tracheostomy patient is, normally आप क्या करते हैं, V1, V2, V3, V4. So V4 means like you and me speaking normally, so that is a V4. But that tracheostomy patient अब वो बात नहीं कर सकता क्योंकि आपने उसका लैरिंक्स जो वॉइस बॉक्स है उसको हमने बाईपास कर दिया। तो जब हमारे को GCS स्कोर लिखने की बारी आएगी, जब हम व्हेन वी आर राइटिंग द GCS स्कोर ऑफ द पेशेंट हु इज़ हैविंग ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, तो उसमें हम V को कैसे मेंशन करेंगे, V1, 2, 3, 4 और इन समथिंग और सम अदर वे। वाई ट्रेकियोस्टमी ट्यूब फॉर न्यूनेट्स एंड इन्फेंट्स इज़ विदाउट कफ। सो नॉर्मली आपने ट्रेकियोस्टमी ट्यूब देखी होंगी। नॉर्मली लेट मी शो यू द ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। So you can see this is one tracheostomy tube, there is no cuff. You can see this is the straight tube and this is the tracheostomy tube for adults, and this is the cuff. You can see this is cuff and there is no cuff. So this is the question that I have asked, why tracheostomy tube for neonates and infants is without cuff. So you have to give the answer, there must be some reason, किसी वजह से वो कफ अवॉइड किया जाता है इन छोटे बच्चों की ट्रेकियोस्टमी ट्यूब में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ कफ इन ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। ये जो कफ जो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के अंदर है, व्हाट एग्जैक्टली इज द फंक्शन ऑफ दिस कफ, देख रहे हैं आप। सो ये आपने लिखना है, इसमें आंसर देना है कि इस ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के कफ का क्या फंक्शन है। The last question, in the midnight, patient with tracheostomy tube suddenly becomes hypoxic due to secretions, maybe dried up secretions. What is the first step you would do to save the life of the patient? क्या होता है, सपोज ट्रेकियोस्टमी ट्यूब पेशेंट की डली हुई है तो सिक्रीशंस क्या है, लेयर बाय लेयर यहाँ आएंगे अंदर इनर वॉल पे, तो वो चिपक जाएंगे। इफ़ वी आर डूइंग रेगुलर, यू कैन से द सक्शन, so the chances of drying up of secretions are less because when the secretions are wet, वो हमने निकाल दिया। So many times what happens, there are lot of secretions in the lower part of the trachea, patient coughs out those secretions, तो वो कई बार आके प्लग की तरह ब्लॉक कर देते हैं। कई बार ये secretions धीरे धीरे जमते जमते इतने हार्ड हो जाते हैं कि वो सक्शन से भी नहीं आ पाते। ऑल ऑफ ए सडन आपको कॉल किया कि पेशेंट साइनोज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपने सक्शन किया, सक्शन में भी खास कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसी स्टेज में आप क्या करेंगे कि पेशेंट की जान बच जाए। सो दिस इज़ द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, एंड इट इज़ always better to read the tracheostomy and then try to solve these questions, and you can ask the question in the message box so that you can put your questions, you can put your answers. If you want any clarification, you can put that also in the message box.
Thank you very much, and don't forget to subscribe and like my channel. Thank you very much.